मैं कर रहा हूँ next report. Okay. Okay, so I think we should start with. Sorry, I got a bit late. I was stuck in traffic, so that was what happens if you leave 5 minutes late. Anyway, okay, so we will start with the. I think let's start with the input output. Okay, in the book. Okay, let me put up the microphone as well. Okay, मैनेज नहीं कर सकते when you're recording. Okay, so let's start with the input and output. In the book, they have mentioned a library which is called the standard in library, and that book and the book says that you can get all the functionality that you want using the standard in library. I was trying to work with that, and it was giving me problems. The main problem was the main problem that it was giving me was that since it's a separate library, you need to import that library. First of all, you need to install that library, and then you have to import that in the path and get it to work. So I opted to go with the easier option, which is to use a scanner object, and that scanner object is built into Java, so that is good enough to get all the input that you require if you want to get the user input. So I think that moving forward with the scanner object would be much better. And already some of you guys were already using the scanner object in your exercises to get user input. So I thought that maybe it's better that we move on with that. So scanner object is normally used to get the user input. But in order to get the user input, you first of all you need to initialize the scanner object. Okay, so if you remember that you like for is lagging, or is it just me? So only the other people can let me know. Okay, it's your internet on. Anyway, so so first of all uh, you need to initialize the object similarly in a similar way by how you initialize an array. But so how it works is that you first of all you write scanner and you give it any name. In this case, it's my object, and then you write new scanner, and then you give these brackets. Okay, so and then you write system.in. So this means that like if you put over there, it says that the standard input stream, this stream is already open and ready to supply input data. Typically this stream corresponds to keyboard input or another input source specified by the host environment or user. Okay, सर It's not आपकी being स्क्रीन shared. नजर नहीं आ रही. oh, I forgot. I should share entire screen. So there are no slides anymore. I think I will not be working with any slides anymore. So we will be directly going and discussing the code
we started from the last class, so we are going to continue the this tradition from now on. Anyway, so as I said that we declare a new scanner object, and over here we are saying like we are passing an input stream over here. So that is being passed as an argument over here. Okay? So this scanner is actually a class. So like it's similar to the classes that we define, but we will once we go into object oriented programming. So this is where it will be more understandable to you guys. So hopefully we will do this in this course as well. So we will touch upon this. We will not discuss this in a lot of detail, but for now, just in order to use scanner, you can just write this, and your my object is being used to uh, get uh, get all the input from the user. So once we declare this object, my object, you write this line, so that object is initialized. Then we have an output statement which says like you enter username, and then you write string username, and you write my object dot next line. So if you want to get the user input as a string value, you always write my object dot next line. Okay, so the line that we want to get next. So whatever so when you write my object dot next line, so whatever you input, that input goes into this string. Okay, because this string is equal to my object dot next line. If it were an integer, it would say my object dot next integer. If it were double, my object dot next double. If it were byte, my object dot next byte. Okay? If it were boolean, my object dot next boolean. So whatever you write over here, that goes into so this function is, you can see that there's a function. So this function returns a value, and that value is stored in this string. So in this case, we were just writing the username, and then it says like the username is this. So now this is an IO function. So what I'll do is I'll just uh, go to my main function, and over here I just uncomment IO, and I run this. So it says enter username. I write Umer. Let me say Asfar. So it says username is Umer Asfar. Okay, so whatever I input, it just prints that out over here. It's that simple. Okay, so ये देखिए ये स्कैनर लिखा है ना, तो you always write the type first and then you give it a name. So you can give it any name. Okay, I can call it scanner, my scanner maybe, my scan. I can give it any name. ठीक है, तो if मैंने इधर here I chose to, because this was an example from tutorials like I don't know, some tutorials online. So I just use the code over there. So you can give it any name. It's just like when you write integer my object, you can write it like that. Float my object, you can write it like that. But in this case, since it was a scanner object, so I wrote scanner my object. Okay. Excuse me. जी डॉट नेक्स्ट लाइन जो है वो स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग इनपुट के लिए. एक्सक्यूज मी. सिंटैक्स है, सिंटैक्स है. ठीक है ना, देखिए फर्क ये है कि whenever you inputting something, ठीक है, so that input is always in text. Okay, so when you write my dot next line, or you even if you write one dot next int, you are always giving the input as integer, but this object it converts that into an integer. ओके ऑटोमेटिकली. नॉर्मली आप सारा जो इनपुट जो आप देते थे कमांड लाइन से, वो स्ट्रिंग आता था, फिर आप उसको खुद चेंज करते थे. स्कैनर ये जो क्लास है, ये डिफाइन की हुई है ना, ये क्या करती है कि ये उसको ना खुद ब खुद कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, मैं आपको ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये क्या हो रहा है. ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये जो ये जो हमारा जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं. तो क्लास व्हेन यू से द थिंग क्लास, इट एक्चुअली मींस अ ब्लूप्रिंट. ठीक है, जैसा कि आपने कोई जहाज डिजाइन करना है, उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे. ये ब्लूप्रिंट बन गया तो फिर उसके ऊपर आप उसके जहाज की पूरी आप डिजाइन करके एक चीज एक्चुअल चीज बनाएंगे. आपने घर खड़ा करना है, आर्किटेक्ट जो है आपके लिए पहले ब्लूप्रिंट बनाता है. ठीक है, ब्लूप्रिंट की बेसिस पे आप पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं. तो जो क्लास होती है, इट्स बेसिकली ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट.
आप कोई भी चीज बना रहे हो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट होती है। हम क्या करते हैं कि हम आई थिंक लेट मी पुट इट दिस वे, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्जी क्लासेस ना खुद से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि क्लास, मैं उसको कोई नाम दे दूं, तो इन दिस केस मैं देता हूँ कि मैं देता हूँ स्टूडेंट फर्स्ट। ठीक है, मैं क्लास स्टूडेंट दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट की क्लास बनाऊँ। अब स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, या जितने भी फंक्शंस हैं, मैं इस क्लास के अंदर डाल दूंगा। ठीक, अब उसमें यह है कि कौन कौन सी चीज मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ, कौन कौन सी चीज मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ। अब पब्लिक जैसे आपका नेम है, इट्स पब्लिक, सबको पता होता है नेम। ठीक है, तो ये आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो मैं लिखूंगा पब्लिक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इससे लिखूंगा क्योंकि नेम जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग, और मैं नेम लिख देता हूँ। ठीक, फिर एक और चीज है जो कि अक्सर जो भी एक और पब्लिक प्रॉपर्टी है लेकिन लोग देना नहीं चाहते, सम पीपल फाइंड इट वेरी प्राइवेट, अब वो है एज। तो आप पब्लिक इंट एज, ठीक है, तो कुछ लोगों को ये लगता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आपने ये जो इंफॉर्मेशन है किसी की रिवील करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, अब जैसे कि अब फर्स्ट कहें कि मैं पेशेंट का बता रहा हूँ, अब पेशेंट में उसको डिजीज क्या है, मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज प्राइवेट थिंग, कि किसी को कोई इंफॉर्मेशन, और ये बड़ा मसला होता है आपके जो ना मेडिकल एथिक्स में, कि आपने किसी भी पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो किसी और के सामने डिस्कस नहीं करनी है। ठीक है, डॉक्टर्स के दरमियान फिर भी डिस्कस हो सकती है, लेकिन उसके बाहर आपने किसी से डिस्कस नहीं करनी है, किसी को पता ना चले। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, वो चाहते हैं, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, वो नहीं चाहते कि किसी और को पता चले कि दे आर सिक और दे हैव सम इलनेस। ठीक है, बाद में इलनेसेस ऐसी भी होती है, बहुत एम्बेरसिंग होती है। ठीक है, तो उस वजह से वो उसको भी नहीं बताना चाहते। तो वो एक प्राइवेट थिंग है जो कि आप उसको हमेशा प्राइवेट में रखेंगे। अब जब क्लास डिफाइन करते हैं, अब स्टूडेंट है, उसमें मैंने नेम दे दिया, एज दे दिया। एज देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ जगहों पे वो कहते हैं कि स्टूडेंट की एज इतनी होनी चाहिए, वरना हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या तो स्टूडेंट बहुत छोटा हो या स्टूडेंट बहुत बड़ा हो, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बड़ा होने का मुझे ये समझ में आता, तो मैं जैसे छोटा है तो उसका चले समझ लें कि ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप, तो उसमें आप कर लें। लेकिन बड़ा है तो उसको, लेकिन एनीवे इट्स अनदर डिबेट। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट क्या वो करता है, क्या क्या कर सकता है काम। ठीक है, फंक्शंस क्या है, तो एक दो फंक्शन स्टूडेंट हैज टू स्टडी, तो मैं उसका ना फिर पब्लिक, मैं उसका फंक्शन डिफाइन करूंगा। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक, और मैं उसका फंक्शन डिफाइन करूंगा स्टडी। ठीक है, अब मैं उसके फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कि वो कर क्या क्या सकता है। पहले तो मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी स्टूडेंट की, स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद मैंने फंक्शंस डिफाइन कर दिए कि वो क्या क्या फंक्शंस कर सकता है। ठीक है, तो मैं उनको यूं डिफाइन करूंगा। अब जो स्टैटिक जो फंक्शन होते हैं ना, तो वो आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आप इस फंक्शन इसका ना ऑब्जेक्ट ना बनाया हुआ हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक, तो वो ये है कि मैंने क्लास बना दी, अब इसके अंदर कुछ भी मैं लिखूंगा ना, तो मैं एज इट इज यूज कर सकता हूँ। मुझे अगर फर्स्ट कहें कि ये मुझे फंक्शन यूज करना है, तो मैं सी प्लस प्लस में काम कर जाता था, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट अबाउट जावा। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट, स्टूडेंट, और डॉट करके ना मैं उसका फंक्शन डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, कि कौन सा फंक्शन मैं कॉल करना चाहूँ, मैं स्टडी कॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शो कर रहा ना स्टडी, तो मैं आई एम नॉट डूइंग समथिंग प्रॉपरली, मे बी दिस क्लास माइट हैव बीन शुड हैव बीन डिफाइंड इनसाइड दिस क्लास। एनीवे, इन एनी केस मैं करूंगा स्टूडेंट स्टडी, और ना मैं फंक्शन यूं कॉल कर लूंगा। ठीक है, तो अब ये काम हम कर रहे थे, जब हम कर रहे थे कि मैथ डॉट करके हम कॉल कर रहे थे, हम कोई मैथ को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे और उसके हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते थे। अगर ये फंक्शन यहाँ पे स्टैटिक ना हो, ठीक है, ये अगर स्टैटिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आई विल फर्स्ट नीड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। मैं उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि अभी तो ब्लूप्रिंट था, मैं उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं फिर लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टूडेंट स्टड इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, जब इसका ऑब्जेक्ट बन गया, फिर मैं करूंगा स्टड, स्टड डॉट स्टडी। ठीक है, अब इसकी देखिए, इसके पैरेलल्स जो हैं वो आपको इससे मिलेंगे, ये जो हमने वो तो वहाँ वैसे ही लिख रहे हैं, चले मैं डाल देता हूँ, आप लोग नाराज ना हो, सेमी कॉलन मिस हो गया तो। एक्सक्यूज मी, सर ये लाइन नंबर 20 में क्या किया था?
उसको क्या कर सकते हैं, अभी उस पर ना जाए, अभी उसकी बात ही बात होगी, ठीक है। जो क्लास जो क्वेश्चन था इनहेरिटेंस का था, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो है कॉन्सेप्ट है, मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। वो आपका वो है आपका वो थर्ड लेवल कोर्स है, यानी कि आपको तीसरा कोर्स होगा, ठीक है। अभी हम पहले कोर्स में हैं, तो वो इतनी जल्दी जंप कर दिया तो इट विल कॉज कंफ्यूजन। मेरे ख्याल में ये भी लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये इसको बता रहा था, ठीक। तो अब इसमें देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट स्टार्ट करके न्यू स्टूडेंट किया। ये मैंने वेरिएबल बनाया, जो स्टूडेंट क्लास ऊपर डिफाइन की थी ना, उसका मैंने एक वेरिएबल बना दिया स्टार्ट, ठीक है। और अ, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे लिखा स्कैनर माय ऑब्जेक्ट लिखा था ना, तो मैं लिखा स्टूडेंट स्टार्ट कर दिया इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, क्या था इस समय क्या, स्कैनर माय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे क्लास डिफाइन हुई है, उससे जब एक दफा क्लास का वेरिएबल बन गया, तो मैं उस क्लास के वेरिएबल को मैं यूज कर रहा हूँ माय ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, माय माय ऑब्जेक्ट। सर एक चीज पूछनी है। तो होता यही है कि ये जो है स्कैनर, तो एक एक्चुअली एक क्लास डिफाइंड, इसका नाम है स्कैनर, ठीक। उसके अंदर एक नेक्स्ट लाइन का एक फंक्शन डिफाइंड है, और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड नहीं है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब अब उसके अंदर ये वेरिएबल्स नहीं डिफाइन, इसके अंदर कोई और वेरिएबल्स डिफाइंड है, ठीक है। तो somebody एक्चुअली रोट दिस क्लास, और उस क्लास को लिखने के बाद उन्होंने एक फंक्शन दिया नेक्स्ट लाइन का, उन्होंने एक और फंक्शन दिया नेक्स्ट इंट का, उन्होंने एक और फंक्शन दिया नेक्स्ट डबल का। और वो क्या करता है कि ये एक इनपुट स्ट्रीम लेता है, तो जो आपका इनपुट स्ट्रीम आता है, ये उसकी बेसिस पे ना ये उसको कन्वर्ट कर देता है ये सारे फंक्शन में। अब नेक्स्ट लाइन जो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, नेक्स्ट इंट जो इंटीजर रिटर्न करता है, नेक्स्ट बाइट जो बाइट रिटर्न करता है, इन्होंने पैसे ये फंक्शन बना दिए। तो इस क्लास को यूज करने के लिए पहले वो उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब कि उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये तो सिर्फ ब्लूप्रिंट है ना, वो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम इन सब फंक्शन को कॉल करके उनसे हम अपना काम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये असल में काम हो रहा है इसके अंदर। ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी ये ज्यादा थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो अगर आपको ये अभी एग्जैक्टली समझ में नहीं आया है तो सर न्यू वाला बोले लाइक व्हाई डज ही राइट न्यू स्कैनर, ओके। तो आप जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ना, अभी हम क्लासेस को ना ऑब्जेक्ट बना, अच्छा ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा ये है कि फिर आप उस ऑब्जेक्ट को लेके ना मुख्तलिफ आप फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल बन गया ना वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ही आपने वेरिएबल बना दिया, तो फिर उस क्लास को ना आप लेके मुख्तलिफ जगहों में पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट का था, स्टूडेंट को मैं बनाने के बाद उसके सारे वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दिए, तो या तो मैं क्या करूं कि हर फंक्शन में उस स्टूडेंट की सारी एक एक प्रॉपर्टी को मैं पास ऑन करूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि वो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने एक क्लास के अंदर स्टोर कर दी, और उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के मैं उसको जगह जगह पास ऑन कर दिया, तो मैं बजाय इसके कि सारी इंफॉर्मेशन जो मैं एक एक करके पास करूं, मैं उस ऑब्जेक्ट को पास करूंगा, उस ऑब्जेक्ट में सारी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है। तो फिर से मैं इसको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। कि मैं लिख देता हूँ जैसे कि क्लास कुछ भी देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मैंने क्लास बनाई, उसका नाम मैंने कोऑर्डिनेट्स रख दिया, ठीक। और उसके अंदर मैं कर देता हूँ कि क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि और कोऑर्डिनेट्स मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ, तो मैं रख देता हूँ पब्लिक डबल एक्स और पब्लिक डबल वाई। ये ब्लू प्रिंट है कि कोऑर्डिनेट की जो क्लास है वो किस तरह काम करेगी, उसका ब्लू प्रिंट है। मुझे कोऑर्डिनेट्स के लिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ यही चीजें चाहिए। अब मैं कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि देयर कैन बी मैनी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ के मैं मेरा घर किधर है उसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, मैं कोऑर्डिनेट्स मेरे ऑफिस के हो सकते हैं, चाहे इन्हीं दो की बात करें, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स, ये तो हो गया ब्लूप्रिंट, नाम लिख दिया कोऑर्डिनेट्स। और मैं किसके, मैं घर के करना चाहता हूँ, मैं इसका नाम रख दूंगा होम। अब मैं घर के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब मैं घर के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ इधर, सही है। अभी ये पॉपअप नहीं कर रहा, तो आई हैव टू चेक कि ये मैं जावा में प्रॉपर, लेकिन इसी तरह ये काम होता है, ठीक।
अब मैं होम के कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए, और इसी तरह मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफिस के कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट्स। अब घर के जो कोऑर्डिनेट्स है फर्क है और ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स फर्क है, तो अगर मैं होम के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो होम डॉट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, फर्स्ट के 10 कर देता हूँ, होम डॉट वाई इज इक्वल टू 20। तो ये मैं घर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऑफिस की मैं कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ तो ऑफिस डॉट एक्स इज इक्वल टू 80, ऑफिस डॉट वाई इज इक्वल टू 112.45, फर्स्ट के। ठीक है, तो एक दफा मैंने कोऑर्डिनेट्स की क्लास डिफाइन कर दी, तो दिस गिव्स मी ब्लूप्रिंट के कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या होगा। ठीक, अगर मैं इनको प्राइवेट कर लूं तो मैं इनको एक्सेस नहीं कर सकता, और आ, इनको मैं पब्लिक किया ताकि मैं एक्स और वाई को इस्तेमाल कर सकूं। तो मैंने पहले होम के कोऑर्डिनेट्स का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर मैंने ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, दिस वाज अ ब्लूप्रिंट बट दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये कि ये मैं 10 और 20 जो मैं स्टोर कर रहा हूँ वो इस ब्लूप्रिंट में स्टोर नहीं हो रहे। ठीक है ना, वो इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये 80 और 12.45 जो है ये इस ऑफिस के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, वो इसके अंदर स्टोर है। दिस इज ओनली अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास एक स्कैनर का एक क्लास किसी ने डिफाइन की हुई है, और उसके अंदर उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है पब्लिक स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन, इस तरह करके, यूं था नेक्स्ट लाइन, इस तरह करके ना किसी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, और उस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब वो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, वो इनपुट जो स्ट्रीम आ रही है उसने वो लिया। इनपुट स्ट्रीम का मतलब ये कीबोर्ड में जो टाइप करो, ठीक है, उसने वो लिया, और उसकी बेसिस पे वो इनपुट को आपसे ले रहा है। तो ये इसके दरमियान फर्क था। अब प्रोग्राम कैन है मल्टीपल क्लासेस बट वी विल स्टडी दैट लेटर। स्कैनर के अंदर जो आपने केवल माय ऑब्जेक्ट को यूजर के अंदर स्टोर कराया, राइट? मैं दिखा देता हूँ। माय ऑब्जेक्ट को आपने जैसे माय ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, तो फिर देन माय ऑब्जेक्ट को आपने यूजर नेम में स्टोर कराया, राइट? माय ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कराया, नहीं, ये है मैंने एक न्यू स्कैनर करके ना, जब भी मैं न्यू लिखता हूँ ना तो ये क्या करता है, न्यू लिखने का मतलब ये कि इट्स अलोकेटिंग अ न्यू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो एक न्यू मेमोरी लोकेशन की जहाँ पे ये माय ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक, आई माय ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मैंने एक इनपुट लिया यूजर से जो कि स्ट्रिंग आया, वो स्ट्रिंग मैंने रिटर्न किया। जब स्ट्रिंग मैंने रिटर्न किया वो इस यूजर नेम के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, माय ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मुझे माय ऑब्जेक्ट स्टोर करना था फर्स्ट करें, तो फिर मैं करता स्कैनर, आप टू कर लें, इज इक्वल टू माय ऑब्जेक्ट। ये माय ऑब्जेक्ट की टाइप क्या स्कैनर है, और टू की क्या टाइप है स्कैनर है। तो दोनों की चूंकि टाइप सेम है इसलिए मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में माय ऑब्जेक्ट जो वो स्टोर हो रहा है टू के अंदर। ठीक है, उनकी टाइप सेम है, लेकिन यहाँ पे चूंकि नेक्स्ट लाइन जो है एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो मुझे उसको स्टोर करने के लिए भी मुझे स्ट्रिंग ही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जितनी सारी मल्टीपल क्लासेस हैं मेन के अंदर सारी मेन के अंदर डिक्लेयर, ऐसा मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं होती, नॉर्मली आप इनके अलग फाइल्स बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो अगेन वो है ना कि ये आप देख रहे हैं कि वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं इनको अभी डिस्कस करना नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वैसे ही क्या अंदाजा कराने के लिए कि ये कैसा काम करे, तो आगे जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि आपको लेटर डाउन द लाइन ना आपको समझ में आए कि ये न्यू हमने इधर क्यों लगाया है, ये ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस कि आई एम नॉट टू मच thrilled about teaching Java as the first language, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वो होते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो कि पहले से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो स्टूडेंट को आधा टाइम ना स्टूडेंट को पता नहीं होता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आई एम नॉट वेरी थ्रिल्ड अबाउट इट। लेकिन अब चूंकि ये इतनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, जावा हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है कि देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। तो द पॉलिसी यही है कि जितनी ज्यादा आप इनको जावा से इंट्रोडक्शन कराएंगे उतनी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। ठीक, तो तो ये तो एनीवे, तो ये था आईओ की बात हो रही थी। तो ये सिंपल सा था, इसके अंदर हमने आईओ का हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसने इनपुट लिया।
इनपुट को स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया, तो फिर उसने सिस्टम डॉट प्रिंट यूजर नेम इज यूजर नेम, तो जो मैं इनपुट जो देता हूँ उसने उसने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो आईओ का फंक्शन था। अब जो दूसरा फंक्शन है वो है इनपुट वैल्यूज। ठीक है, ये इनपुट वैल्यूज ये बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। क्या करे, स्कैनर माई ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर, उसी तरह मैं एक नया स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। ये क्या करे, सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन एंटर अ बाइट वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि बाइट स्मॉल, क्योंकि मैं बाइट वैल्यू चाहिए, तो मैं स्मॉल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको क्या माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट बाइट। अब ये जो लाइन है, ये एक फंक्शन माई ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल हो रहा है नेक्स्ट बाइट, और ये एक बाइट वैल्यू रिटर्न करेगा। बाइट वैल्यू जो है स्मॉल में स्टोर कर ली। इसी तरह एंटर लॉन्ग वैल्यू माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, तो नो लॉन्ग वैल्यू जो है वो लार्ज में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट डबल, ये डबल वैल्यू प्रिसाइज के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक, और इसके बाद मैं क्या, सिस्टम डॉट प्रिंट द थ्री वैल्यूज आर, तो स्मॉल लार्ज और प्रिसाइज, मैं उनको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए मैं इसमें वो नहीं कर रहा कि डबल डॉट पार्सेंट नहीं कर रहा। ठीक है, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग नहीं कर रहा। ठीक है, मैं स्ट्रिंग डॉट वो इंटीरियर डॉट पार्सेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो क्लास है इसने फंक्शनैलिटी दी हुई है कि इट विल डू इट बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो ये आप यूजर को इसने फंक्शनैलिटी दे दी कि आप उसके बारे में परेशान ना हो, जो है कमांड लाइन से आप लेते थे, ये काम जो है अब मैं खुद ब खुद आपको करके दे दूँ। ठीक है, तो अब आप इस तरह ये नोट करें कि जो इनिशियल जावा थी उसके अंदर ये क्लास नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि नहीं, इस क्लास की यूजर को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में वो इनपुट डालता है उससे मसला होता है, और जो भी मैं इनपुट डालूंगा और मैं बार बार वो पहले इनपुट डाले फिर उसको वो कह रहे कि अच्छा मुझे इस इनपुट को मुझे अब कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इसको मुझे बाइट करना है। मैंने कहा इसको आसान कर दो, उसको फंक्शंस बना के दे दो कि जब उस फंक्शन को इस्तेमाल करें तो काम ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है, तो ये आगे चल के आप लोग भी ये बहुत सारे काम किया करेंगे कि आप क्लास बनाया करेंगे, कहेंगे यार इसमें यूजर को ये प्रॉब्लम होगी, तो हम ये फंक्शंस प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो इस तरह ये आप प्रोग्रामिंग करते हुए आप करते हैं। तो अब इसकी, अब मैं अब चूंकि आपको फंक्शंस बता दिए थे, तो अब फायदा क्या होता है मुझे कि मैं एक फंक्शन कोड डिस्कस करता हूँ और मैं मेन में से उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो उससे मुझे मेन के अंदर काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, आई जस्ट कॉल द फंक्शन, इट गेट्स द जॉब। तो इसको अब रन करके देखते हैं। एंटर बाइट वैल्यू मैं 45 दे देता हूँ। एंटर लॉन्ग वैल्यू इनटू, एंटर डबल वैल्यू। ठीक है, तो इससे सब मुझे वैल्यूज जो है प्रिंट करके दे दी। ठीक, तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, मैं बाइट वैल्यू में जरा बड़ी वैल्यू डाल के देखता हूँ क्या होता है। एंटर बाइट वैल्यू आ देता हूँ, बाइट बाइट वन वन का था, वन बाइट, हाँ वन बाइट तो 8 बिट्स होते हैं ना, तो मैं इसको 512 दे के देखता हूँ, क्योंकि इससे भी ज्यादा 1024 दे के, इसने एरर दे दिया। ठीक है, इसमें बाइट में ज्यादा वैल्यू डालनी दी, क्योंकि इट्स गोइंग टू इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ द बाइट। ठीक है, तो इस वजह से इसने ये कर दिया। तो ये हो गया इनपुट वैल्यूज। प्लस माइनस 127, ये -127 से लेके, नहीं आया, -128 से लेके +127 तक, -128 से +127। तो ये है। ओके, तो अच्छा इतना लोगों को क्लियर है, या अभी कोई अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं अगले टॉपिक पे जाता हूँ। बाइट वाली चीज का कंप्यूटर को कैसे पता चला, आपने क्या कंडीशन लगाई थी? Okay, so I am getting no input, so I will move on to the next topic. ये क्या होगा? बाइट वाला पार्ट एक्सप्लेन करें। बाइट वाला पार्ट बहुत सिंपल है। आपका जो बाइट होता है वो 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, 8 बिट्स का मतलब ये है कि आगे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे पास 8 बिट्स हो गए। ठीक है, अब 8 बिट्स में जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है 127, अगर आपके पास अनसाइंड अनसाइंड बाइट है तो फिर वो 250 जीरो से लेकर 255 तक स्टोर करेगा। लेकिन जब आप सिंपल जब बाइट लिखते हैं तो उसका मतलब ये साइंड है। साइंड का मतलब ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जब प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसका मतलब ये है कि वो ये वाला बाइट, ये वाला बिट चेक करता है कि जीरो है कि वन है। अगर वन है इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर है, अगर जीरो है इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर है। और ये जो सारे जो
ये सारे जो बिट्स हैं इनको यूज करता है आपकी वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 127 तक स्टोर हो सकती है। तो मैंने वैल्यू दी थी 1024 दी थी, 1024 जो है वो 127 से काफी बड़ी वैल्यू है, तो इसने इसको 127 को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि बहुत बड़ी वैल्यू आप एंटर करें, इट्स एन एरर। ठीक है। अगर यही काम सी प्लस प्लस में किया जा रहा होता तो वो क्या करता कि 127 के बाद वो नेगेटिव में चला जाता। तो वो नेगेटिव 128 से स्टार्ट करता और करता रहता, जीरो पे आता और फिर 127 पे आता और फिर से दोबारा नेगेटिव पे चला जाता, क्योंकि वैल्यू इतनी बड़ी थी। तो यू गोल घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता जब तक कि वो सारे 1024 उसकी वैल्यू पूरी नहीं हो जाती। और फिर वो जहां भी रुकेगा, कोई भी नंबर पे रुकेगा, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट। जावा में प्रोटेक्शन रखी हुई है कि आपने गलत वैल्यू डाल दी है तो आपको फौरन एरर दे देगा। क्या ट्रंकेशन एरर कैसे दिया हुआ? उसका मुझे नहीं पता। क्या हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट इट हियर? मैंने इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया? इसको मैंने ऐसे इम्प्लीमेंट किया कि सिंपली मैंने एक बाइट, जिससे आप इंटीजर डिफाइन करते हैं उससे मैंने बाइट डिफाइन किया। बाइट जो होता है, इंटीजर जो होता है वो 32 बिट्स लेता है, जो बाइट है वो 8 बिट्स लेता है। ठीक है। तो बाइट्स स्मॉल डिफाइन किया और मैंने कहा माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट बाइट, तो अब मैं जो भी वैल्यू डालूंगा इट विल एक्सेप्ट दैट एज अ बाइट एंड इट विल स्टोर दैट इनटू स्मॉल। तो ये मैंने बस काम, बिल्कुल उसी तरह से मैं इंटीजर स्टोर करता हूँ। मैं इंटीजर का इनपुट लेना होगा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंट यूज करूंगा। मुझे लॉन्ग का लेना है तो मैंने नेक्स्ट लॉन्ग कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट डबल कर दिया। आप हमेशा इसकी डॉक्यूमेंटेशन स्कैनर की खोल के देख सकते हैं। गूगल करें स्कैनर जावा, आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। उसमें सब लिखा हुआ है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। आप क्लियर हो गया अली, या कोई कंफ्यूजन है? ओके गुड। ऑलराइट। अब हम एरेज के टॉपिक में हम फिर से जा रहे हैं। ठीक है। अब आज जो हम करेंगे, आज हम मल्टी डायमेंशनल एरेज करेंगे। पिछली बार मैंने उसके ऊपर रोक दिया था कि अभी मल्टी डायमेंशनल एरे पे नहीं घुसते, पहले हम फंक्शंस कर लें, उसके बाद हम मल्टी डायमेंशनल एरेज पे। अभी भी एक टॉपिक रहता है जो कि एरे को पास करने का, कि एक फंक्शन का पूरा एरे पास कर दें, पूरा पूरा एरे रिटर्न कर लें। अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम बाकी बस चीज करेंगे, वो भी हम अभी आगे चल के उसके ऊपर हम जाएंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपने जब अगर किताब अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा मल्टी डायमेंशनल एरे का टॉपिक है। मैं स्किप कर दिया था, वो इससे स्किप किया था क्योंकि मैं उसको बाद में डिस्कस करना चाहता था। अच्छा। अब आपको याद होगा कि जब हम एरेज के ऊपर काम कर रहे थे, मैं लिखता था इंट ARR, उसको कोई नाम दे देते थे। ठीक है। अ, और वो हाँ इस तरह था ना। हाँ इस तरह था। तो ये क्या, मैंने ये इससे को भी एक्सेप्ट कर, इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। एक मिनट, लेट मी चेक, क्योंकि इसने इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो लेट मी चेक इन द बुक। मैं ऐसे में मैं खुद से कल मैं बुक, दो तरीके से चेक कर रहा था, दो तरीके से चेक कर रहा था। मैं एक दफा बुक को चेक कर लूँ ना कि क्योंकि मैं जावा सी पर सिंटैक्स को मैं कंफ्यूज कर देता हूँ बार। तो एरेज व्हेन इन डाउट चेक द बुक। तो इसमें पेज डाउन इसने इस तरह डिफाइन किया हुआ है। इसने इसी तरह डिफाइन किया, पहले ब्रैकेट्स लिख रहा है। मल्टी डायमेंशनल में मैं चेक कर लूँ, मल्टी डायमेंशनल में ये क्या कर रहा है। टू डायमेंशनल एरेज उसमें इस तरह दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि दोनों को ही एक्सेप्ट कर रहा है। इट एक्सेप्ट्स इट दिस वे एंड इट एक्सेप्ट्स इट दैट वे एज वेल। ठीक। तो कल मैं जब बैठा बना रहा था कोड तो आई मिस दिस। एनीवे, तो अभी जो मैं बुक में चेक किया तो वो इसको भी इस तरह एक्सेप्ट कर रहा है और वो इसको इस तरह भी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। सो इट्स वर्किंग बोथ वेज। तो
सर बुक में वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं लेकिन कोड में डाटा टाइप का बार स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। यस। तो आ, तो इसने जो बुक है उसके अंदर इसने दोनों को ही इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। तो जो मैं पहले लिख रहा था कि अर्लियर जो था वो जावा का वो सी पर्पस का सिंटैक्स था, उसमें आप यूं लिखा करते थे। अब ये जावा जो है इन दोनों को ही एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि उसने इसको एक्सेप्ट करके पहले एक दफा रन करके देख लेते हैं जस्ट टू बी क्लियर। इसमें एरेज ठीक है, एरेज का मुझे आउटपुट दे रहा है, इट डिडंट गिव मी एनी एरर। तो ये था कि जब मैंने इसको पहले लिखा था, अब मैं ये बाद में लिखा था, इसको मैं पहले डाल के देख लेता हूँ जस्ट टू बी श्योर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। इसको रन करके देखते हैं तो इसको भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमें ये पता चल गया कि वी कैन while defining an array at least for multi-dimensional array we can put the brackets here or we can put the brackets after the name of the variable। ठीक है, दोनों तरह से ये काम कर रहा है। तो लेट्स कीप इट दिस वे क्योंकि इस तरह बुक में इसी तरह डिफाइन हुआ था। ठीक है, तो इंटीजर n इज इक्वल टू, जैसा हम करते थे इंटीजर एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और हम इसके अंदर हम कोई वैल्यू देते कि कितना बड़ा ये इंट है। ठीक, हम इस तरह डिफाइन करते थे। तो अब ये 5 वैल्यूज का ये। ठीक, इसी तरह जो मल्टी डायमेंशनल एरे है तो इसमें होता ये है कि आप लिखते हैं कि इट हैज 2 डायमेंशन। ठीक है, इट कैन हैव 3 डायमेंशंस एज वेल। सही है, लेकिन अभी हम फॉर सिंपलिसिटी विल कीप इट एज 2 डायमेंशन। वैसे 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, बहुत सारी डायमेंशन हो सकती है, लेकिन जितनी आप डायमेंशंस करेंगे उतना ये कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएगा। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड डोंट गो बियॉन्ड 3 डायमेंशन। ठीक है, 2 या 3 डायमेंशंस पे रहे, अनलेस के आपके पास यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, तो आप 4 डायमेंशंस को आप अवॉइड करें, जस्ट स्टिक विद 3, मैक्सिमम 3 डायमेंशन। अगर एक्स वाई और जी हो जाएगा, आप 3 डायमेंशन में सोचना आसान होता है, 4 डायमेंशन में सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई रिकमेंड जस्ट डोंट गो बियॉन्ड 3 डायमेंशंस। फॉर सिंप्लिसिटी आई एम गोइंग फॉर 2 डायमेंशंस। तो मैंने कहा कि न्यू इट, और इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट विच इज द फर्स्ट डायमेंशन इट्स फॉर रोज। रोज है ना आपकी, उसकी बात हो रही है, और जो सेकंड डायमेंशन है ये कॉलम्स की बात कर रहा है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। तो इसका मतलब ये है कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक, तो 2 रोज 3 कॉलम्स का मतलब ये है कि इसके अंदर डेटा जो है, कि फर्स्ट के मैं सारे जीरोस जा रहा हूँ, तो 0 0 0 3 कॉलम हो गए और 0 0 0 2 रोज हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह करके मैं एक डेटा बना रहा हूँ, एक मैट्रिक्स टाइप का, जो कि 2 रोज है 3 कॉलम स्टोर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 रोज 3 कॉलम करूंगा, ठीक है, तो फिर ये उसमें अगर मैं इनिशियलाइज करूंगा दैट विल बी 0 0 0। नाउ दे आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। 3 रोज 4 कॉलम्स करूंगा तो फिर यहाँ पे एक सब में एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह मैं डेटा डिफाइन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, तो अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे आपने डिफाइन करना हो तो आप इस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये हो सकता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट 1 जो है उसने अपने सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें स्कोर की थी। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 को मैं यहाँ पे 1 वैल्यू डाल दूंगा, और उसके पहले सब्जेक्ट में क्या था, पहले सब्जेक्ट में उसने 100 स्कोर किया था, दूसरे सब्जेक्ट में उसने 20 स्कोर किया था। तो यूं करके ना मैं उसका डेटा डाल सकता, तो मैं इसको यूज करूंगा टू ट्रेवर्स बिटवीन द वैल्यूज। ठीक है, इस इंडेक्स को। अब स्टूडेंट 2 जो है उसने पहले सब्जेक्ट में 0 लिए, दूसरे सब्जेक्ट में 90 ले लिए। तो मैं इस तरह करके मैं ऊपर वाले से रो से मैं उसको कर सकता हूँ कि स्टूडेंट की बात करूँ, आगे से मैं उसके मार्क्स में पिक कर सकता हूँ। तो इस तरह करके ना अगर आपने डेटा को मुख्य चीजों में शिफ्ट करना हो तो आप के एक सारा डेटा जो है एक ही जगह पे स्टोर करना हो, तो वो आप कर सकते हैं। अब यही काम हमने सिंगल डायमेंशन एरे से भी किया था। ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे से भी किया था, उससे भी हो सकता है, हमने करके देखा था उससे। ठीक है, फर्क ये है कि इसमें चूंकि आप इंडेक्स वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स वैल्यू में जंप करना जरा आसान होता है। ठीक है, कि आप यहाँ पे ये जो थी ये 0 पे, ये हम कहते हैं 0, तो इंटीजर 0 पे हम जब भी जाएंगे 0 1 से 0 0 0 1 0 2, ये 0 0 है, 0 1 है, 0 2 है। तो मुझे पता है कि 0 के जो इंडेक्स है उसमें हमेशा
मेरे नाम हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, और उसके आगे जितने भी वो मार्क्स होंगे। तो मैं जब भी 1 की बात करूँ, 2 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, तो आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मार्क्स, ठीक है। तो ये मेरे लिए मेंटली ये करना आसान। दूसरे में क्या है कि आई हैव टू ये कीप ट्रैक कि अच्छा कितनी देर के बाद दूसरा डेटा आता है, ठीक है। तो ये मेरे लिए काम करना आसान है। कंप्यूटर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो मेमोरी है ना, मेमोरी, उसमें हमेशा ये होता है कि सबसे पहले ये वैल्यू स्टोर होगी, ये वैल्यू स्टोर होगी, ये वैल्यू स्टोर, ये वैल्यू स्टोर होगी। ये नहीं होता कि मेमोरी के अंदर एक पूरा एक चंक है और वो यू करके पूरा चंक उसी को एलोकेट कर देता है। ये जो वैल्यू है ना, ये 100, ये इसके बाद आती है असल में। 100 यहाँ पे आएगी मेमोरी में, ठीक है ना। लेकिन कंप्यूटर को समझ जाता है कि मैं किस तरह हैंडल कर रहा हूँ, तो इंडेक्स वैल्यू को वो हमें हमारी आसानी के लिए वो इधर शो करता है, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा इसका। ये अक्सर जब आप उस पर जाएंगे ना, क्विज कंपटीशंस में अगर आपने हिस्सा लिया, तो इस तरह के सवाल उधर आ जाते हैं कि आपको आपको क्या करते हैं कि आपको वैल्यू दे देते हैं, कहते हैं कि मेमोरी लोकेशन ये है, आप बताओ कि जो अगली मेमोरी लोकेशन है वहाँ कहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी। हमने अभी मेमोरी लोकेशन की बात ही नहीं की है, ठीक है, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उधर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि किस तरह का। एनीवे, तो हम क्या कर रहे थे, हमने इंटीजर डिफाइन किया 2/3 का, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डालने के लिए आई विल नीड टू यूज अ फॉर लूप। फॉर लूप इसलिए लूंगा क्योंकि मुझे एक लूप जो है वो मुझे उसको इस तरह चलाना है, और एक लूप को मुझे इस तरह चलाना है, सही है। तो एक लूप तो पहले कहेगा कि अच्छा मैं पहले रो पर हूँ, अब इसके नीचे क्या क्या वैल्यूज है। अच्छा मैं दूसरी रो पे हूँ, इसके नीचे क्या क्या वैल्यूज है, ठीक है। तो वो इस तरह चलेगा, नहीं सॉरी, इसके आगे क्या क्या वैल्यूज है, ठीक है। तो वो इस तरह अपना रिकॉर्ड किया। तो मुझे इसलिए दो नेस्टेड फॉर लूप्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक। तो अभी इसको देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक। आप फर्स्ट कहना कि मैं कहता हूं कि अच्छा मुझे 0 0 लोकेशन पे मुझे कोई वैल्यू डालनी है, ठीक। तो मैं करूंगा कि n 0 0 = 0, ठीक। व्हाट डज नेस्टेड मीन? अच्छा नेस्टेड का मतलब ये है, देखिए फॉर के अंदर एक और फॉर आ गया ना, तो ये जैसा घोंसला नहीं होता, तिनके के अंदर तिनका होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इसलिए नेस्टेड कहते हैं कि हमने एक नेस्ट बना लिया कि वो क्या होता है कि एक अंदर तिनका होता है, तिनके 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 गोल गोल तिनके पड़े होते हैं, फिर उसके बाहर तिनके गोल गोल पड़े होते हैं, फिर उसके बाहर तिनके गोल गोल पड़े होते हैं। तो ये वही है कि ये फॉर लूप जो है, ये चूंकि ये चलता है तो ये गोल गोल घूमता है, तो इसलिए इसको ये कहते हैं कि एक फॉर लूप के तो दूसरा फॉर लूप है, इसको हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। इसका तीसरा फॉर लूप भी हो सकता है, चौथा फॉर लूप भी हो सकता है, तो सारे नेस्टेड फॉर लूप्स कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए ये टर्म्स हाँ लाइक प्लांटेड, उसी तरह ना कि आपके गोल गोल अंदर पड़े होते, तो इसलिए ये इसको इसलिए कह रहे हैं, ठीक। तो तो पहले आप अंदर का जो पूरा फर्स्ट का सर्कल हो ना, तो ये फॉर लूप है पूरा सर्कल बनाता, और उसके बाद ये दूसरे फॉर लूप बाहर निकलता है, दूसरा फॉर लूप चलता है, टिक 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 करके, जैसा घड़ी नहीं चलती उस तरह ये चलता है, ठीक। तो जैसा आप समझ लें कि घड़ी के अंदर आगे पास एक आवर्स का हैंड होता है, एक मिनट्स का हैंड होता है, एक सेकंड्स का हैंड होता है। सेकंड का हैंड तेज चलता है, मिनट का उसका ऐसा चलता है, और जो वो है आवर्स का उससे भी आहिस्ता चलता है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह का बनाना हो तो आप अपना जो घड़ी है वो नेस्टेड फॉर लूप से बना सकते हैं, ठीक। तो अगर मुझे ये मुझे अगर डालना हो 0 0, तो मैं ये लिखूंगा 0 के मुझे जो रो 0 है और जो कॉलम 0 है उसमें मैंने ये वैल्यू डाल दी। अब रो 0 है और जो कॉलम 1 है उसमें मैंने वैल्यू 1 डाल दी, ठीक। और रो 0 है और कॉलम 2 है, उसमें मैंने 2 वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब सारे कॉलम जो है हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक। तो फिर अब रो क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। तो जो रो 1 है और जो कॉलम 0 है उसमें मैंने फर्स्ट के 3 डाल दी। फिर रो 1 जो है और कॉलम 1 जो है उसमें हमने 4 वैल्यू डाल दी, और रो 1 जो है और जो कॉलम 2 जो है उसमें हमने 5 वैल्यू डाल दी, ठीक है। ये ऐसे ही है, 0 भी डाल सकता था मैं, 0 1 2 तो भी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी में क्या डालना चाहता हूँ। तो आप इसमें देखिए पैटर्न है इसके अंदर,
0 1 2 0 1 2, ये पैटर्न जो है ये फॉर लूप से कंप्लीट हुआ। अब इसमें भी पैटर्न है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमने इस पैटर्न को मिमिक करना है, ये पैटर्न जो है मिमिक, वी हैव टू मिमिक दिस पैटर्न। मिमिक का मतलब पता है? मिमिक का मतलब होता है कि फॉलो और टू डू एग्जैक्टली लाइक दैट पैटर्न, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फॉर लूप बनाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2, वी आर टॉकिंग अबाउट द रोज। तो आई जो है हमारे रो की बात करेगा, ठीक। फिर फॉर इन जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3, 3 कॉलम्स से हम 3 हम कॉलम्स की बात करें, ठीक। और मैंने कर दिया एन आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। अब आई क्या था, अब फर्स्ट ये फॉर लूप चलता है, आई क्या था, 0 था। जैसे ही ये फॉर लूप के अंदर आया तो एकदम से दूसरा फॉर लूप स्टार्ट हो गया, तो आई तो 0 है, अब जे भी 0 हो गया। आई 0 जे 0 में आई प्लस जे डालती तो 0 प्लस 0 0, तो आई एन आई जे में 0 वैल्यू आ गई। अब ये फॉर लूप जो है फिर से चलेगा, आई अभी 0 है, जे आपका 1 हो गया, तो 0 1 में क्या वैल्यू आ रही है, 0 प्लस 1 1 आ रही है, ठीक। फिर आई 0 था, जे 2 हो गया, तो 0 प्लस 2 में 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 0 1 2 इससे स्टोर कर लिया, ठीक। अब जे जो है चूंकि जैसे 3 हुआ तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप खत्म हुआ, उसके बाद आई का लूप दोबारा चलेगा। अब आई क्या हो गया, 1, अब 1 हो गया और जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 0 पे ये क्या डालेगा, 1 प्लस 0 1, फिर 1 2 पे क्या डालेगा जी, इधर 3 लिखा है, इधर नहीं, ये तो ऐसे एग्जांपल दे रहा था मैं, ये तो अलग तरह से काम हो रहा है, हम तो इसको फॉलो करें ना, ठीक। अब ये अगर है कि 1 प्लस 0 पे ही आपको 1 स्टोर कर रहा है, ठीक है। फिर 1 प्लस तो 1 1 पे ये 2 स्टोर करेगा और 1 2 पे ये 3 स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये 0 1 2 1 2 3 स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये चीज, अब ये जब खत्म होगा फॉर लूप, तो आई जो है वो भी 2 हो गया, जब 2 हो गया तो आई का लूप भी खत्म हो गया और ये हमारा नेस्टेड फॉर लूप खत्म हो गया। जब नेस्टेड फॉर लूप खत्म हो गया तो इससे सारी वैल्यूज इसमें स्टोर कर ली है। वो सारी वैल्यू स्टोर हो गई, मैं दोबारा से वही फॉर लूप लगाया, वही फॉर लूप 2 बार लगा दिए, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूं, वैल्यू ऑफ एन आई प्लस जे इज, और एन आई जे, ठीक है। अब ये ताकि पढ़ा जाए तो मैंने इसको इस तरह लिखा है कि मैं स्ट्रिंग में कि एन आई और जे। अब जब आई यहाँ पे 0 होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब जे 0 होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, एन आई जब 1 होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये उस फॉर्मेट को दिखाने के लिए कि कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, ये उसके लिए रखा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद ये अगला फंक्शन मेट्रिसेस का, ये अभी आके इसको भी देखते हैं, फिलहाल इसको चला के देख लें ताकि कंफ्यूजन कोई हो तो दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये क्या, फिर से चला के देख लेते हैं, मैं कोई गड़बड़ कर दी है। अ, ये आ गया के पास, ठीक है। 0 0 में 0 आए थे, मैं कहा था 0 1 2 और 1 2 3 स्टोर हो गए, तो 0 1 2 स्टोर किया और 1 2 3 इसने सब दिखा दिया, 0 0 0 0 1 2 पे किस तरह है ये, ठीक है। अब इसका फायदा ये है कि इफ आई वांट टू लाइक मेक अ बिगर, ठीक है, तो मुझे सिंपली बिगर एरे, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा कि यहाँ पे यहाँ पे 2 3 की जगह मैं उसको चेंज कर, नॉर्मली वो करने के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप करते हैं इंट, आप कह दें कि क्यू कर लें, क्यू इज इक्वल टू 8 और इंट आर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैं क्यू डालूंगा, यहाँ पे मैं आर डाल दूंगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्यू डाल दूंगा और यहाँ पे भी मैं आर डाल दूंगा,
और इसका फायदा क्या होगा कि अब मुझे क्यू और आर को चेंज करना है, तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इट ऑन एवरी प्लेस, मैं सिंपली यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू चेंज करूँ तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ये तो दिस इज इजियर वे ऑफ डूइंग थिंग, क्योंकि आपको अब यहाँ पे देखें मैं क्यू आर चेंज करना पड़ा और मुझे यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज करना पड़ेगी क्यू आर। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं 2 3 कहीं ऊपर लिखा है तो अगर मैं उसको बाद में चेंज करना है तो आई विल हैव टू चेंज दैट ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छा ये है कि ऊपर मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं विच विल होल्ड द वैल्यू ऑफ द एरे। ठीक है, कि कितनी रोज है कितने कॉलम्स हैं, और मैं यहाँ पे बस चेंजेस करूंगा तो बाकी चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे कोड के। ठीक है, नॉर्मली जब आप कोड लिखें तो आपने इसकी कोशिश करनी होती है कि हार्ड कोडेड वैल्यूज, हार्ड कोडेड होता है कि जिसमें वैल्यू लिख दी है उसको कंप्यूटर में उसको डायरेक्टली फॉलो करेगा। ठीक है, तो हार्ड कोडेड वैल्यूज जो है वो कंप्यूटर की स्पीड को, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को तेज कर देती है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्लो कर देता है। क्यों? जी, क्योंकि जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो पहले कंप्यूटर देखा अच्छा क्यू आया है, अब क्यू का क्यू में जो है क्या वैल्यू है, तो वो जाएगा मेमोरी लोकेशन से उठाएगा कि अच्छा ये वैल्यू है। तो आपको जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, शायद आपने पढ़ा हो ALU, ठीक है, वो क्या करेगा उसमें यहाँ पे क्यू से नजर आएगा तो पहले वो देखेगा अच्छा क्यू मेमोरी लोकेशन कहाँ है, पहले उस जगह पे जाएगा, वहां पे जो वैल्यू उठाएगा इधर वो सब सब्स्टिट्यूट करेगा फिर काम करेगा। अगर उसने डायरेक्टली 10 लिखा हुआ है तो उसको जाने की जरूरत नहीं है, इट विल जस्ट रीड 10, तो उसको उधर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि विच अप्रोच इज बेटर। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि अभी के लिए यूज दिस, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोग्राम की ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर प्रोग्राम की ऑप्टिमाइजेशन की आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, अपना काम आसान करने की जरूरत है। ठीक है, तो वाई स्टोरिंग 3 इन लास्ट एरे, क्योंकि आई आपका 1 है और जे जो है आपका 2 हो जाता है। ठीक है, तो इन लास्ट जो लोकेशन है जब आप उसको चलाते हैं, ये देखें ना आई जो है आपका समझ गए, चलें, गुड गुड। ठीक है, तो ये आपका एरे इस तरह काम करेगा। ठीक है, मैट्रिक्स का समझ में आ गया इतना कि कैसे मैट्रिसेस काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है अपनी आसानी के अब हम मैट्रिक्स को हम देखेंगे कि मैट्रिक्स आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से खत्म कर दूँ। अब मैं 2x2 मैट्रिसेस बनाए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो मैं लिखा है A इज इक्वल टू न्यू इंट, और मैं इंट 2x2 लिख दिया, B जो है वो भी 2x2 है और C जो है ये भी 2x2 है। तो मैंने 3 मैट्रिसेस डिफाइन कर दिए हैं इसमें। ठीक, अब मैंने फॉर लूप चलाया। ठीक है, और फॉर लूप में मैंने क्या किया कि चूंकि रोज 2 हैं और कॉलम्स 2 हैं तो दोनों में 2x2 लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों 2 2 रखे हैं, I और J। अब मैंने कहा कि आई, इसमें आई के अंदर जो सारी वैल्यूज है 1 डालो और जे के अंदर सारी वैल्यूज है 2 डालो। ठीक, इसका मतलब ये फिर से कोड को देख लेते हैं, आई इज 0, जे इज 0, तो आई 0 0 में क्या वैल्यू डाली 1, और बी 0 0 में क्या वैल्यू डाली, सॉरी ए 0 0 में 1 आ डाली, बी 0 0 में 2 डाली। अब इसके बाद जे जो है वो 1 हो जाएगा। अब ए 0 1 में क्या वैल्यू डाली 1, और बी 0 1 में क्या वैल्यू डाली 2, तो ए के अंदर सारी 1 वैल्यू डाली है, बी के अंदर सारी 2 वैल्यू डाली है। जब ये जे खत्म हुआ लूप तो आई क्या हो गया 1 हो गया, फिर जे के अंदर है, जे अभी 0 है, तो A 1 0 में क्या वैल्यू जा रही है 1, ए B 1 0 में क्या वैल्यू जा रही है 2, A 1 1 में क्या वैल्यू जा रही है 1, ए B 1 1 में क्या वैल्यू जा रही है 2। तो ए के अंदर सिर्फ 1 स्टोर हो रहे हैं, बी के अंदर सिर्फ 2 स्टोर हो रहे हैं। तो मैं एक ही फॉर लूप के अंदर ये दोनों काम कर ली। मैं सेपरेट फॉर लूप भी बना सकता था लेकिन ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम, तो उसको बचाने, टाइम को बचाने के लिए मैं दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही के अंदर लिख दिया। ठीक है, उसके अंदर सारे डिफाइन हो जाएंगे और फिर मैंने इनको आपस में सम किया हुआ। ठीक, क्या करें कि सी
सी आई जे इज इक्वल ए आई जे प्लस बी आई जे। ए आई जे के अंदर क्या वैल्यू है 1 है, बी आई जे के अंदर वैल्यू है 2 है, तो सी के अंदर मुझे वैल्यू क्या आएगी 3, तो 3 3 3 3 आ जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद जब मैं ऐसे कहता हूँ कि इसको आउटपुट दे, तो ये जो फंक्शन है ये मुझे 3 3 3 3 आउटपुट देगा। रन करना है। ठीक है, ये दिखाया 0 0 में 3 आया, 0 1 में 3 आया, 1 0 में 3 आया, 1 1 में 3 आया। ये तो हमने मैट्रिक्स एडिशन कर दी। इसी तरह मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अलग फॉर्मूला। इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि वो रो इनटू रो नहीं होता, रो इनटू कॉलम होता। ठीक है, तो आपको उस तरह करना पड़ेगा, यू हैव टू बिल्ड दैट अप। सर प्रिंट स्टेटमेंट समझा दें। प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल है। देखिए, आपका जो प्रिंट कमांड है वो क्या करती है कि ये तो हो गया स्ट्रिंग, पहले ये स्ट्रिंग करेगी। अब इस स्ट्रिंग में मुझे मजीद एडिशन करना है। मैं क्या ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, आई ऐड कर रहा हूँ। तो आई की जो भी वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये लिखने के बाद ये 0 लिखेगा। उसके बाद ये स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग शुरू हुआ, उसमें उसने 2 ब्रैकेट्स डाले, तो एक ब्रैकेट बंद हुआ, दूसरा ब्रैकेट खुला, और फिर उसने जे की वैल्यू लिख दी। जे की वैल्यू लिखने के बाद उस ब्रैकेट को बंद किया और इज लिखा। इज लिखने के बाद मैंने प्लस वैल्यू लिख दी, कि जो उसकी वैल्यू थी वो लिख दी। तो इस तरह वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया। तो ये सिंपली मैंने मुख्तलिफ बिट्स एंड पीसेस को लेके मैंने एक पूरा स्ट्रिंग जो है कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं यूं भी लिख सकता था कि मैं आई की जगह मैं यहाँ पे 0 लिख देता। अगर यहाँ पे 0 लिख देता तो हमेशा 0 ही रहता। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग का हिस्सा बन जाता। तो वो मुझे 0 ही चाहिए था, वो मुझे वैल्यू फर्क चाहिए थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो स्ट्रिंग था उसको यहाँ पे खत्म किया, उसमें एक वैल्यू जो आधी जो चेंज होनी थी वेरिएबल की, तो वहां मैंने वेरिएबल डाला और फिर मैंने नया स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, तो ये उस तरह करके। अच्छा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हम इसको ना हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमने 1 1 और 2, सॉरी, ये पहली रो हो गई हमारी और ये दूसरी रो हो गई। ठीक है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, तो लोगों को ये अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है कि ये हम वैसे 2 डायमेंशनल एरे है, हम इसको दे इस तरह रहे हैं, तो नॉर्मली क्या करते हैं एंटर डाल के ना वो इसको यूं लिख देते हैं। आई थिंक जावा सपोर्ट्स दिस। ठीक है, तो सी प्लस में तो होता था। ठीक है, तो जावा में भी होना चाहिए, क्योंकि जावा जो सी प्लस से ही निकली है। तो वो इस तरह लिख देते हैं, तो इस तरह उनको पढ़ना आसान होता है कि अच्छा ये मैट्रिक्स हमने यूं डिफाइन किया। ठीक, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक दफा, जस्ट फॉर माई ओन सेक। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, या तो ये अलाउ करेगा या फिर नहीं करेगा। लेट्स सी। मैंने उसको टेस्ट नहीं किया था व्हेन आई वाज मेकिंग दिस कोड, तो नहीं, एरर दे दिया उसने। अनरिजॉल्व सिंबल ऐसे नहीं दिया। तो मैं इसको चेक करूंगा कि इसको जावा में कैसे करते हैं, लेकिन सी प्लस में एटलीस्ट वो यूं अलाउ कर देता है। या फिर नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में ये इस तरह काम करेगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये इस तरह काम करेगा। लेट्स सी। हाँ, ठीक है, काम कर गया। तो मैं सिंटैक्स भूल गया था इसका। ठीक है, तो इसने, देखें, इसने एक बाहर का एरे है, उसके अंदर अंदर का एरे है। इसमें आपने रोज ये दोनों कॉलम डिफाइन कर दिए, फिर एक कॉमा डाला, और ये जो कॉमा है ये बाहर के एरे को कर रहा है, और फिर आपने नया एरे स्टार्ट किया, आपने उसकी वैल्यूज डाल दी। याद है ना, हम सिंगल एरे देख रहे थे, तो हम सिंगल ब्रैकेट से हम काम कर रहे हैं। अब चूंकि डबल एरे, टू ब्रैकेट से काम कर रहे हैं। लेकिन ये पढ़ना अब आसान है, आपको इसको देख के लगे मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं आ गया एक तरह से। ठीक है, तो इस एरे के अंदर पूरा एक मैट्रिक्स डिफाइंड है। ठीक है, तो ये इस तरह करके लोग लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए, या अगर बस पहले से, अब जैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे करने के लिए मुझे इसको यूं लिखूंगा, तो नाउ वी हैव एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ठीक है, तो वो जो मैट्रिक्स की जो अगर मैथमेटिकल फॉर्म है उसको विजुलाइज करने के लिए लोग इसको इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसको विजुलाइज करना आसान है। एंड वील ऑलवेज यूज पुट एंड आई, ये मैं ख्याल आप उसकी बात कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट की, जी आपको डालना पड़ेगा आई। ठीक है, तो आई इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि आई जो है आपका चेंज हो रहा है। नो वन एंड वील ऑलवेज पुट वन इनसाइड इट। अली आपको जरा यू हैव टू टेल मी मोर। चलिए मैं अपना वो हेडफोन्स निकाल कर ले, मेरी वॉइस कोई जल्दी खराब हो जाएगी। जो मैं नया इंटेक्स सिंटेक्स है उसमें क्या सर इसमें मैं कह रहा हूँ ये जो आपने क्या कहते हैं नया मैट्रिक्स ए जो डिटरमाइन किया आपने, जी जी जो ऊपर ये इनिशियलाइज किया, इसमें हमेशा जो अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं ये सारे 1 ही होंगे या 0 होंगे, मतलब इनका नहीं क्या नहीं, तो आपकी ये मर्जी है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए अब आप जैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब आइडेंटिटी हम्म मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए मुझे फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, हम्म तो उसके लिए मैं इसको इनिशियलाइज करने के लिए, तो बजाय इसके कि मैं फॉर लूप लगाऊं उसके अंदर कैलकुलेट करूंगा क्या वैल्यूज है, मैं उसको डायरेक्टली लिख दूंगा। तो बस ये एक तरह से इनिशियलाइज है, मतलब लूप लगने से पहले वैल्यूज रैंडम वैल्यूज हैं, डमी वैल्यूज। जी, आप कोई भी वैल्यू डाल दें, मैं इसको 8 10 कर दूं, वो मेरी मर्जी है कि मुझे जो वैल्यूज है, क्योंकि अगर मुझे पता है ना वैल्यूज है वो चेंज नहीं होंगी आगे चल के, तो मैं उसको यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट मैं उसको लिख दूं बस। ठीक है, तो वो उसी तरह ही है जैसे हम लिखते हैं इंट इंट ए इज इक्वल टू 10 हम कर देते हैं, पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उसमें आप इसको इस तरह लिख देते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, तो अब आपका आज की जो लैब है उसमें दो क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, ज़्यादा से लंबे दो ही रखे। एक जो है वो इनपुट से रिलेटेड है कि आप क्या करेंगे कि उसमें एक छोटी सी आप गेम बनाएंगे, एक गैसिंग गेम है। कंप्यूटर पहले एक रैंडम वेरिएबल खुद से बनाएगा, आपने प्रोग्राम ये करेगा, प्रोग्राम चलाएगा, वो दिखाएगा नहीं कि रैंडम वैल्यू कौन सी जनरेट हुई है। फिर आपसे पूछेगा कि आप नंबर गैस करें जो कि 0 से 100 के दरमियान हो। तो आप फर्स्ट में कहते हैं 70, तो कहते हैं वैल्यू इज लोअर। फिर आप कहते हैं 50, कहते हैं वैल्यू इज लोअर। फिर आगे 30, वैल्यू इज लोअर। आप कहते हैं 10, वैल्यू इज हायर। करते 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 इवेंचुअली आप उसे पहुंच जाएंगे वैल्यू। जैसी वैल्यू मिल जाएगी तो वो कहेगा कि यू फाउंड द नंबर। फिर कहेगा डू यू वांट टू प्ले अगेन। अगर आप कहेंगे यस, तो फिर से वो कहेगा कि नंबर सिलेक्टेड, मेगा गैस। फिर सोचो, और ये चलता रहेगा जब तक कि आप यू चूज नॉट टू क्विट। ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरा जो है उसमें आते हैं मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है और मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कोशिश करें कि आप उसका खुद से निकाल लें। अगर आप नहीं निकाल सकते तो उसका सोल्यूशन जो है वो आपको बुक में गिवन है। ठीक है, तो लेकिन मैं बुक से देखे ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप कोशिश करें खुद से उसको सॉल्व करें। ठीक है, सोल्यूशन इज देयर। ठीक है, तो मसला कोई नहीं है कि वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और काम हो गया। ठीक है, आपने मुझे सेटिस्फाई नहीं करना, आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना। ठीक, तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि वो कि ये तो आप करें, सब्ट्रैक्शन खुद से बनाएं कोड सारा का सारा, और मल्टीप्लिकेशन में करने की कोशिश करें कि रोज इनटू कॉलम होता है तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक, ट्राई टू फिगर दैट आउट। ठीक, कोड जो है मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगेन वही बात है कि कोड मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग खुद से लिखें। ठीक है, वरना मैं कॉपी पेस्ट करें तो कोड कर सकते हैं, लैब जल्दी हो सकती है। ठीक है, कोशिश ये करें कि आप लोग खुद करें उसे। ठीक है, कि खुद से सारी एक्सरसाइज करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ठीक है, और उसको करें, तो दैट्स इट। तो अब आपसे फिर लैब में मुलाकात होगी। ठीक है, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है कोई और तो बस से पूछ लें। स्कैनर में सिस्टम डॉट इन क्यों लिखते हैं? वो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इनपुट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो आपसे स्कैनर क्लास ना वो वेट कर रही होती है कि मैं इनपुट कैसे दे रहा हूँ। इनपुट जो है मैं कंट्रोलर से भी दे सकता हूँ, इनपुट मैं कीबोर्ड से भी दे सकता हूँ, इनपुट मैं वॉइस से भी दे सकता हूँ। ठीक है,
तो वो मुझसे पूछ रहा होता है कि अच्छा मैं कौन से इनपुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे को स्ट्रीम का बताना है, तो system डॉट इन जो है वो कीबोर्ड इनपुट को बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड इनपुट की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम इसलिए ये लिखते हैं कि अच्छा तुमने कहाँ से तुमने इनपुट उठाना है, हम वो बता रहे होते हैं, इसलिए वो लिखते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई आपसे कहे कि मुझे मैसेज कर देना, आप कहेंगे यार मुझे मैसेंजर में मैसेज कर रहे हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, मुझे एसएमएस कर रहे हो, तो कहेगा एसएमएस करो, तो एसएमएस को ही आप देखेंगे, आप बाकी की चीज़ों को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर जो उसको आपने बताना होता है कि कौन सी स्ट्रीम उसने देखनी है। इनपुट तो वो ले रहा है लेकिन वो कहाँ से लेगा, ठीक है। तो उसको आपको बताना होता है कि यहाँ। आई होप दैट इज क्लियर। गुड। चलिए फिर टाइम इज अप, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द लैब, ठीक है। सो दिस क्लास इज ओवर हियर।